السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کے قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یعنی کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا یہ درود شریف رب کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہا ہے؟ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ سمجھ جانا کہ درود شریف ہمارا قبول ہو رہا ہے۔ وہ علامتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور پھر آخر میں یہ بھی بتلاؤں گا چونکہ درود شریف بہت سارے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور الگ الگ طریقے کے درود شریف ہیں۔ سارے ہی درود شریف بڑی فضیلت والے ہیں، سب کو پڑھنے کی اپنی الگ الگ فضیلت ہے۔ تو کون سا درود شریف کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے، یعنی کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے سے کیا کیا حاصل ہوگا، یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، درود شریف کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا درود شریف رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا پہنچے گا تو اللہ رب العزت آپ کے دل میں نور پیدا کر دے گا اور سکون پیدا کر دے گا۔ یعنی جب آپ کا دل پر نور ہو جائے، منور ہو جائے اور ایک طریقے کی راحت اور سکون محسوس کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا درود شریف قبول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد دل کو راحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، سکون اور روحانی روشنی محسوس ہو تو یہ قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری علامت ہے، کہتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف رغبت کا بڑھ جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھنے کے بعد گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور نیکیوں کی طرف رجحان پیدا ہو جائے، نیکی والے کام کرنے کا دل کرے، تو پھر یہ بھی درود شریف کے قبول ہونے کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو تیسری نشانی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا درود شریف قبول ہوگا تو گناہوں سے بچاؤ میں آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالی بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھنے لگے تو یہ بھی درود شریف کی برکت اور قبولیت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے لگا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو علامت ہے وہ ہے دعاؤں کی قبولیت میں بہتری آنے لگے۔ یعنی اگر انسان دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں درود پاک پڑھے اور اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگیں تو یہ بھی درود شریف کے قبول ہونے کی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پانچویں علامت ہے وہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، اگر کوئی شخص درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ درود کی اعلیٰ قبولیت کی علامت ہے، یعنی سب سے بہترین نشانی ہے۔ اسی طرح جو چھٹی علامت ہے، کہتے ہیں روحانی ترقی اور کشف و بصیرت۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ہونے سے پہلے دل کے اندر دستک کا بچ جانا، دستک آ جانا، پہلے ہی محسوس ہو جانا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں کشف ہو جانا۔ کہتے ہیں بعض لوگوں کو درود شریف کی کثرت کے بعد باطنی آنکھ کھلنے اور روحانی کیفیات محسوس ہونے لگتی ہیں، یعنی اندرونی طور پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو پردے کے پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو محسوس ہونے لگتی ہیں۔ وقت سے پہلے ہی، ہونے سے پہلے ہی ان کو ایک طریقے سے احساس ہو جاتا ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ پیدا ہونے لگتی ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے، جو ایک بلند مقام کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو ساتویں علامت ہے آخری، کہتے ہیں مشکلات کا آسان ہو جانا۔ زندگی میں موجود رکاوٹیں یا پریشانیاں آسانی سے حل ہو جائیں تو یہ درود شریف کے قبول ہونے کی ایک بہترین علامت ہے۔ تو یہ درود شریف کے قبول ہونے کی علامتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں
कि दरूद शरीफ बहुत सारे हैं, कौन सा दरूद शरीफ किस मकसद के लिए पढ़ा जाए और किस तरह से पढ़ा जाए। कुछ वज़ीफ़े औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन से जो मनक़ूल हैं वो मैं आपकी खिदमत में चंद मिनट में पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। कहते हैं कि दरूद शरीफ में एक दरूद शरीफ है दरूद ताज, दरूद ताज, और बहुत बेहतरीन दरूद शरीफ है। और दरूद ताज क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर ये दरूद शरीफ अभी दिखाऊंगा कि दरूद ताज क्या है। ठीक है, पहले आप ये सुन लें कि दरूद ताज का जो वजीफा है वो किस तरह से करना है और कैसे पढ़ना और क्यों पढ़ा जाता है। कहते हैं कि दरूद ताज जो है ना, इसका वजीफा इस तरह करना है कि रोजाना इसको एक मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा, और वक्त मुतय्यन करने कि सुबह में पढ़ना है या शाम में पढ़ना। ठीक है, एक मरतबा भी आप पढ़ने का मामूल बना सकते हैं और 11 मरतबा भी पढ़ने का आप इसको मामूल बना सकते हैं। ठीक है, वह आपके वक्त के ऊपर और आपकी आसानी के लिए आप जैसा मुंतखब करेंगे वैसा तय कर लें। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, अगर आप एक मरतबा या फिर रोजाना 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाते हैं तो आपको इसके जरिए से खौफ की जो अलामत होती है ना, खौफ पैदा होता है दिल के अंदर, वह आपका खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से जादू और आसेब, जो जादुई कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें होने लगती हैं, तो इस तरह के जो असरात होते हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह खत्म होंगे इसके जरिए। और इसी तरह हर तरह की मुसीबत से आपकी हिफाजत होगी। इसी तरह दरूद ताज के जरिए से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ख्वाब के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ज़्यादातर उम्मीद होती है कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए दरूद ताज के जरिए से। तो इस मकसद के लिए भी ये पढ़ा जाता है। दरूद ताज क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए, इसको आप याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप महफूज कर लीजिए और देख कर इसको याद करके देख कर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा दरूद शरीफ है, एक और हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, दरूद तुंजीना। तुंजीना ये दरूद शरीफ, ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये क्या है बतलाऊंगा, स्क्रीन पर दिखलाऊंगा। इसका वजीफा क्या है, किस तरह से करना है और किस मकसद के लिए किया जा सकता है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि इसका वजीफा 4444 मरतबा, 4444 मरतबा इसको पढ़ना है एक ही बार, यानी एक ही बैठक में इसको पढ़ना है इतनी मरतबा, जो दरूद तुंजीना है। वक्त अगर कम है आपके पास तो 11 मरतबा भी आप इसको पढ़ सकते हैं और 100 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। जो आला वजीफा है ताकतवर वो है 4444 मरतबा इसको पढ़ें। अच्छा, किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, कहते हैं बड़ी से बड़ी आजमाइश, बड़ी से बड़ी मुश्किल इसके पढ़ने से आसान हो जाती है और हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल। इसी तरह कैद व बंद, जो कैद की सूरत हाल होती है, कुछ अजीज कैद बंद में मुब्तला होते हैं, या इसी तरह से बीमारी में मुब्तला होते हैं, इसी तरह से कर्ज के अंदर मुब्तला होते हैं, इसी तरह से दुश्मनी का खौफ होता है, किसी दुश्मन का डर दिल में होता है। ठीक है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं, इन तमाम कामों के लिए दरूद तुंजीना पढ़ा जाता है। तो इस मकसद के लिए आप दरूद तुंजीना पढ़ सकते हैं। और दरूद तुंजीना क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास महफूज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा दरूद शरीफ है दरूद इब्राहिमी, यानी कि जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। इसका वजीफा भी बहुत बेहतरीन है। कहते हैं कि रोजाना 100 मरतबा भी इसको पढ़ने का मामूल बनाया जा सकता है, या रोजाना 313 मरतबा भी इसको पढ़ने का मामूल बनाया जा सकता है। ये किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है दरूद इब्राहिमी, कहते हैं हर किस्म की बरकत, रूहानी बुलंदी और मकबूलियत हासिल करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुलंदी मतलूब है कि आप बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हैं, या फिर यह है कि बरकत हासिल करना चाहते हैं, या इसी तरह से मकबूल होना चाहते हैं, लोगों के दिलों में घर करना चाहते हैं, तो फिर आप दरूद इब्राहिमी को इस तरह पढ़ सकते हैं 100 मरतबा या फिर 313 मरतबा। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपको नसीब हो जाएंगी। और अगर आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाने तो फिर बहुत ही बेहतरीन है। कम अज़ कम 100 मरतबा या फिर 11 मरतबा
हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें तो भी इंशाअल्लाह बड़े बड़े मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे। चौथा दरूद शरीफ है, उसके बाद एक दरूद शरीफ यानी 5वां दरूद शरीफ और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ठीक है, चौथा जो दरूद शरीफ है वो बहुत छोटा दरूद शरीफ है। ठीक है, बहुत छोटा दरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये दरूद शरीफ, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ सकते, सबसे छोटा दरूद शरीफ। इसको किस तरह पढ़ना है, कहते हैं कि हजारों बार भी इसको पढ़ सकते हैं आप। अगर 1000 मरतबा इसको पढ़ने का मामूल बना लें आप, तो इंशाअल्लाह ज़बान पर दरूद जारी रखने के लिए बेहतरीन, कसरत से पढ़ने पर दिल की दुनिया बदलने लगती है। यानी दरूद शरीफ पढ़ने की एक आदत हो जाएगी आपको। अगर इसको पढ़ने का आप मामूल बनाएंगे, दरूद शरीफ के आदी हो जाएंगे, और फिर इस दरूद शरीफ के जरिए से इंशाअल्लाह आपकी दुनिया बदलने लगेगी, यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आने लगेगी। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा। 5वां दरूद शरीफ है दरूद फातिह, बहुत बेहतरीन दरूद शरीफ है, और ये दरूद शरीफ सूफिया कराम की यहाँ बहुत मकबूल है। अच्छा जी, इसका क्या मकसद है, क्यों पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ना, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और दिखाऊंगा भी कौन सा दरूद शरीफ है दरूद फातिह। कहते हैं कि ये जो दरूद शरीफ है दरूद फातिह, रोज़ाना 11 मरतबा भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मामूल बना सकते हैं 11 मरतबा, 33 मरतबा पढ़ने का भी मामूल बना सकते हैं, और इसी तरह 100 मरतबा पढ़ने का भी आप इसको मामूल बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह जब पढ़ेंगे तो क्या आपको नसीब होगा, कहते हैं दिल की सफाई होगी, नंबर 1। बातनी कश्फ, यानी बातनी तौर पर आपकी आंखें और जो गंदगी है वो दूर होगी और सफाई होगी। कश्फ की जो अलामात हैं, जो मादे हैं, वो आपके दिल के अंदर पैदा होंगी और रूहानी बुलंदी में खास असर अंदाज होगी। तो देखिए कितना बड़ा फायदा है जो दरूद फातिह है। तो इसके पढ़ने के लिए आप कोई भी वक्त मुतय्यन कर सकते हैं। अच्छा, दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका होना क्या चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना, लेकिन तरीका खास क्या होना चाहिए। देखिए, एक बात आप समझते चले जाएं। कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ने का मुअस्सिर सबसे अफजल तरीका यह है कि नंबर 1, वुजू की हालत में आप दरूद शरीफ पढ़ें, यानी वुजू करके आप दरूद शरीफ पढ़ने के लिए बैठें। ठीक है। नंबर 2, क़िबले की तरफ मुंह करके बैठें, वुजू करके बैठें, क़िबले की तरफ मुंह करके बैठें। नंबर 3, शुरू में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर जो मतलूबा दरूद शरीफ है वो पढ़ें। शुरू में दरूद इब्राहिम सबसे पहले, फिर जो दरूद शरीफ का आपको वजीफा करना वो दरूद शरीफ पढ़ें, 11, 33 या इसी तरह से 40, 100 या 1000 दफ़ा या 4444 मरतबा, जितना भी आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। और जो चौथी चीज़ है वह है आखिर में भी 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। मतलूबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा आखिर में भी दरूद इब्राहिम पढ़े, यानी जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। और 5वीं जो बात है वह है कि नियत करें। नियत क्या करनी है, नियत ये करनी है कि या अल्लाह, ये दरूद शरीफ तेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता हूँ, मेरी दुआओं को शरफ कबूलियत आता फरमा, आमीन। तो पूरा तरीक़ा दरूद शरीफ के ताल्लुक़ से मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद है बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और पसंद भी आई होंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, दरूद शरीफ कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।